Well, hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Luke. पाकिस्तान के लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए लूका की इंजील को लेकर आए हैं। If you will remember, Luke wrote this book along with Acts to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. अगर आपको याद हो तो लूका की अंजील जो है वो लूका तबीब ने लिखी, ना सिर्फ ये बल्कि अमाल की किताब को भी, ताकि लोग हकीकी मसीह को जान सके। And the idea is that Jesus is the legitimate Messiah in the Gospel of Luke, and he chose legitimate apostles. और इसका तस्वुर इसलिए भी किया गया ताकि लोग जान सके हकीकी मसीह के बारे में और हकीकी शागिर्दों के बारे में जिन्हें खुद मसीह ने चुना। Now, Luke has 6 booklets in it, and we just finished booklet number 1, where Jesus did his northern ministry. याद रखें कि लूका की इस अंजील के अंदर 6 किताबचे हैं और अभी तक हमने एक ही किताबचे को खत्म किया है, जिसमें मसीह यीशु की नॉर्थन खिदमत के मुतालिक बयान है। The northern ministry was done so that he might show his messianic identity. और उसकी जो नॉर्थन के अंदर मुतालिक थी, वो इस बात को बयान करती थी कि उसके पास कुदरत है। And he did this by doing many miracles and casting out many demons. और अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए उसने बहुत सारे मौजूद को दिखाया, हत्ता के बदरूहों से आजाद किया। Despite his ability to show his messianic identity, many people rejected him, and so he suffered. और हम देखते हैं वो कि मसीह यीशु को बहुत सारे लोगों ने कबूल ना किया, तो भी वो अपनी मसीहाई को जाहिर करता हुआ उन पर रहम करता रहा। Now we're going to move into booklet number 2, and it's going to be his trip, his first of 3 trips to Jerusalem. और आज जो है हम दूसरी किताबचे की जानिब बढ़ेंगे, जिसमें हम मसीह यीशु का यरूशलेम की तरफ सफर के मुतालिक सीखेंगे। And in this section, we're going to see his authoritative revelation triumphs over a corrupt system. और आज हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से मसीह यीशु जो है उस गलत और करप्ट किस्म के जो मामूलात थे या दुनिया के तरीके थे, उन पर भी बात करते नजर आएंगे। And let's read chapter 9, verse 51, and we will see that this is the beginning of booklet number 2. और आज जो है हम 9वें बाब की 51 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दूसरे किताबचे का आगाज है। Go ahead and read chapter Luke 9:51, please. Okay, only one verse. One verse. Okay, यहाँ पे कुछ यूं मरकूम है। जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी। आमेन। Now notice here, when the time had come for Jesus to go to the cross, he set his face toward Jerusalem. याद रखें कि जब मसीह यीशु का वो वक्त नजदीक आ पहुंचा कि वो मसलूब हो, जिसके लिए वो जमीन पर आया था, तो उसने यरूशलेम की तरफ अपने सफर को किया। So the northern ministry has been finished, and now he is on his way to the cross and to death. और अभी जो है उसकी नॉर्थन जो मुनादी है वो खत्म हो चुकी है और अब उसकी मसलूबियत का वक्त शुरू हो चुका है। Now, in this booklet, there will be 3 sections. The first one, 951 through 1042, Jesus is going to offer benefits consistent with his messianic identity. और अभी हम देखते हैं कि इस सारे दुरानिया के अंदर मसीह यीशु अपनी कुदरत और अपनी शनाख्त को जाहिर करते नजर आते हैं।
And he's going to tell his disciples their responsibility is to hear and heed his message. और मसीह यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि उनके जिम्मे जो काम है वो क्या है, सुनना और देखना. And they are expected to do that. He expects them to hear and heed despite opposition throughout the land of Israel. और हम देखते हैं कि उन्हें क्यों देखने और सुनने के लिए कहा गया, क्योंकि बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं और सुनते हैं. In the second section, Jesus will extend blessings to those who hear and heed, and he will pronounce woes upon those who don't. और जो लोग सुनते हैं और खास मेरा मसीह उन्हें एक खास किस्म की बरकत देता है. And then the third section will be God's growing word of truth will ultimately prevail despite opposition. याद रखें कि जो कोई मसीह के उस कलाम में बढ़ता है उसकी मुखालफत में Okay, so let's look at our first chiasm. We will have again another chiasm that goes from A to B to C to D. और आज फिर से हम उसी की आजम को समझते हुए ए, बी और सी और डी सेक्शन में समझेंगे. So the first A and A prime, A will be Jesus rebuked his disciples for misunderstanding his message of mercy. और ए हिस्से के अंदर हम देखेंगे कि मसीह यीशु अपने शिगिर्दों को डांटते हुए हमें नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु की शनाख्त को ना पहचाना. A prime will be Jesus rebuked Martha for not hearing his message of mercy. और फिर हम देखते हैं कि मसीह यीशु मार्था को भी डांटते हुए नजर आते हैं क्योंकि मार्था ने भी उसकी शनाख्त को ना पहचाना. Then the B will be Jesus exemplified the cost of discipleship, that is, setting his face to Jerusalem. और फिर हम देखते हैं मसीह यीशु उन शिगिर्दों की कदरों कीमत के मुताबिक बयान करते हुए नजर आते हैं और यरूशलेम की तरफ अपने रुख को. The B prime will be Jesus exemplified the cost of discipleship with the Good Samaritan parable. और फिर मसीह The B prime will be Jesus exemplified the cost of discipleship with the Good Samaritan parable. और हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने जो है जो शिगिर्दों की कीमत को बयान करते हुए एक मिसाल दिया. वो मिसाल किसकी है? सामरी शख्स की. Now, notice that Jesus is not asking his disciples to do anything that he won't do himself. और जो कुछ हम चाहिए कि हमारे साथ लोग करें, हमें भी वही कुछ दूसरों के साथ करना जरूर है. So, Jesus is setting the example, being willing to go to the cross in Jerusalem, which is the Father's plan, and he's telling the disciples they need to follow.
याद रखें कि मसीह यीशु ने एक नमूना दिया ताकि वो बाप के उस मंसूबे को बयान कर सके, और ये नमूना शागिर्दों के लिए था ताकि शागिर्द उस नमूने की पैरवी में आगे बढ़ सके। Then the C and the C prime, Jesus will commission 70 more disciples as forerunners to announce his kingdom of God message. We are not hear you, brother. Jesus commissioned 70 more disciples. Can you hear me right now? I can hear you. You can't hear me? Hello? Can you hear me now, Mary? The C and C prime, Jesus commissioned 70 more disciples as forerunners announcing his kingdom of God message. आप हम देखते हैं उन शागिर्दों को बताया गया कि जिस बात की उन्हें मनादी करनी है वो क्या, आसमान की बादशाही की। Then Jesus blessed the disciples who heard and saw these events. Then Jesus blessed the disciples who heard and saw these events. Lost your voice. और फिर यीशु ने शागिर्दों को बरकत दी जो उसे सुनते और देखते थे। Then the D, the middle, is going to be Jesus showing great sorrow to the cities who reject the kingdom of God message. और हम देखते हैं उनमें से बतेरे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मसीह यीशु की इस मनादी को कबूल ना किया। Notice that this chiasm repeats the point that Jesus's response to the city's rejection of his message is go to the next town. Not now is the time of judgment. Judgment will be future. और हम देखते हैं कि जब मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा मनादी के लिए, तो उन्हें ये भी कहा कि जो शहर तुम्हें कबूल ना करे तुम उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना, और उसका आखिरी वक्त में इंसाफ होगा। Now, this is just another look at this. So A and A prime is rebuking people. B and B prime is cost of discipleship. C and C prime are 70 blessed. And then the middle is woe to the cities. अगर आप ए और ए प्राइम को देखेंगे तो उसमें यीशु अपने शागिर्दों को डांटते हुए नजर आते हैं। अगर आप बी और बी प्राइम को देखेंगे तो वहां शागिर्दों की उस कीमत के मुतालिक बयान किया गया है। अगर आप सी और सी प्राइम को देखेंगे तो वहां पर उन शहरों के मुतालिक बयान किया गया है जिन्होंने उस मनादी को कबूल ना किया। So we will see that those who hear and reject the message that Jesus sends with his disciples, that is the kingdom of God message, will actually be a rejection of Jesus. हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा ताकि वो मनादी कर सके, और जिन्होंने उस मनादी को कबूल ना किया दर हकीकत उन्होंने यीशु को भी कबूल ना किया। And those who reject Jesus' kingdom of God message are actually rejecting the Father's kingdom of God message because the Father sent to give that message to the world. और जिन्होंने मसीह यीशु के शागिर्दों को कबूल नहीं किया उन्होंने दर हकीकत आसमान की बादशाही की मनादी और खुदा बाप को भी कबूल नहीं किया, क्योंकि खुदा बाप ने बेटे को भेजा और बेटे ने शागिर्दों को। Okay, so let's see how A and A prime illustrate that now is the time to hear Jesus' mercy message. It's not the time to judge or serve. या अभी जो हम ए और ए प्राइम को देखेंगे ये अदालत का वक्त नहीं बल्कि सुनने और देखने के वक्त के मुतालिक है।
So let's read Luke chapter 9, verses 51 through 56, please. आए मेरे साथ लूका की इंजील में जाएंगे और उसके 9वें बाब की 51 वर्स से 56 वर्स तक पढ़ेंगे, जहाँ कुछ यूं लिखा है। जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे एक कासद भेजे। वो जाकर सामरियों के गांव में दाखिल हुए ताकि उनके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया, क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, खुदावन, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दे कि आसमान से आग नाजिल होकर इन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूखे हो, क्योंकि अपने आदम आदमियों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। आमेन। Okay, so notice here, as we read previously, is now ready to leave the northern ministry and go on his first of 3 trips to Jerusalem. जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी नॉर्थन खदमत और मनादी को खत्म किया, तो वो यरूशलेम की तरफ जाने लगे। यरूशलेम में मसीह यीशु अपनी हयात मुबारका के अंदर 3 दफा गए। Now, notice in verse 52 that he sends his messengers or his disciples before him to go before him and prepare the way. अगर आप 52 वर्ड्स को देखेंगे, आज को देखेंगे, तो वहां पर खास बयान है कि मसीह यीशु ने उस जगह पे जाने से पहले अपने कासद या शागिर्दों को पहले ही वहां उस जगह पर भेजा। Now, when they enter the village of the Samaritans are not willing to accept Jesus. और हम देखते हैं कि जैसे ही वो सामरियों के इलाके या गांव या जगह में पहुंचे हैं, तो सामरियों ने उन लोगों को यानी शागिर्दों को या कासदों को कबूल ना किया। So James and John, when they see this, and remember, Jesus has given them power to cast out demons, power to heal people, they have the power of prophets. और फिर हम देखते हैं कि जो याकूब है और यूहन्ना है, वो किसी आग के मुतालिक बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके जो खुदा के लोग हैं, उनके पास कोई आग होती है जिससे चीजों को भस्म किया जा सकता है। So when James and John recognize that these Samaritans aren't receiving Jesus, they say, is it time for judgment? और हम देखते हैं कि जब यूहन्ना ने और याकूब ने देखा कि उन्होंने खुदा को कबूल ना किया बल्कि खुदा को टिकने ही ना दिया, तो उन्होंने सोचा कि ये वक्त इंसाफ का वक्त है। Let's turn to 2 Kings chapter 1. आए मेरे साथ दूसरा सलातीन और उसके पहले बाप में जाएंगे और उसकी 10वीं आयत। And let's go ahead and read 2 Kings chapter 1, and we'll start in verse number 8, and we'll read through 14. Okay. 2 Kings chapter 1, verses 8 through 14. सेकंड किंग दूसरा Chapter 1, सलातीन और उसके पहले बाप और उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे 14 आयत तक, जहाँ पे कुछ यूं मरकूम है। जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा
कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ए मर्दे खुदा। बादशाह ने कहा, हाँ तू उतर आ। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों को के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। उसने उनसे मुखातिब होकर कहा, ए मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं फरमाया है कि जल्द उतर आ। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। पर खुदा की आग आसमान पर से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने तेरे तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊंचे चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत कर कर उससे कहने लगा, है मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जान जो तेरे खादिम है तेरी निगाह में गरा बहाल हो। देख, आसमान से आग नाजिल हुई और 50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गरा बहाल हो। आमेन। So we see here that what James and John are saying is we have the authority of Elijah because Jesus has given them that authority. Should we, because they've disrespected us, bring fire down from heaven? हम देखते हैं कि एलिया ने खुदा की मदद से उस आग को नाजिल किया। लेकिन यकूब और यूना जो है वो क्या समझते हैं कि खुदा तो हमारे साथ है, यीशु तो हमारे साथ है और यीशु ने हमें इख्तियार दिया है। और अब वो कहते हैं कि तू हमें हुक्म दे ताकि हम भी आसमान से आग को नाजिल करें। क्यों? क्योंकि इन्होंने तुझको कबूल ना किया। So, what we have here is the disciples are misunderstanding what Jesus has done and the authority he has given them and how they are to use it. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शागिर्द है वो खुदा के उस इख्तियार को सही पहचान नहीं पाए हैं कि खुदा ने जो इख्तियार उन्हें दिया है उसका इस्तेमाल किस तरह से करने की जरूरत है। Now, let's read Luke chapter 10, verses 38 through 42, and Jesus will rebuke Martha for her misunderstanding of his mercy. आए हम इसी तरह 10वें बाब में जाएंगे और उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे जहां पर यीशु मसीह मार्था को भी डांटते हुए नजर आते हैं। 38 टू Chapter 10, 40 verses 38 वर्स। to 42. ओके, जहाँ कुछ यूं लिखा है, फिर जब जा रही थी तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, है खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में से कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी चीजों की फिक्र तदत में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। Now, what we see here is the A prime, where Martha and Mary are both receiving Jesus. Mary wants to listen to what Jesus has to say so she can be his disciple, where Martha is busy serving. हम देखते हैं कि मार्था और मरियम वो के दोनों ही बहनें हैं
और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन दोनों बहनों में फर्क क्या है। वो खुदा को जानती है, वो दोनों ही शागिर्द हैं, लेकिन वो शागिर्द जो सुनता है, जो देखता है, वो क्या है। हम देखते हैं कि जो मार्था है वो बाकी चीजों में पड़ी है, लेकिन मरियम क्या कर रही है, यीशु के कदमों में बैठकर उसको सुनती है और उसको देखती है। So just as James and John has misunderstood their mission, they thought they were there to judge instead of show mercy. Martha is misunderstanding what is important and what isn't important. जिस तरह याकूब और यूना ने मसीह की उन बातों को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, और उन्हें गो के उस जगह पर इस तरह से बात कर कर गजब को नाजिल करने की बजाय रहम करने की जरूरत थी। उन्हें वो समझना चाहिए कि मसीह ने हमें रहम के लिए बुलाया। उसी तरह मरियम और मार्था में भी फर्क है, और दोनों में से एक ने अच्छे हिस्से को चुन लिया। So Jesus corrected both parties, that is, James and John and Martha. Jesus corrected both James and John and Martha. और हम देखते हैं कि जे He told James and John that they needed to display a mercy and not destruction or judgment. और हम देखते हैं कि याकूब को और यूहन्ना को जो था वो करने की जरूरत थी, ना कि इंसाफ की। And because Jesus, in his first advent, his first coming to this earth, he came to offer salvation, not destruction, his disciples should do the same. और हमें ये भी जानने की जरूरत है कि मसीह यीशु पहले आने के लिए उसने क्या किया। क्या वो के लिए आया? नहीं, बल्कि वो रहम के लिए आया, ताकि हम निजात पाए। और जो कुछ मसीह ने किया, वो चाहता है कि उसके शागिर्द भी वही कुछ करें। So that means that we, until Jesus comes back the second time, are to show mercy towards people, not judgment. और इसीलिए हम देखते हैं कि उन्हें भी जरूर था कि वो लोगों पर रहम करते, ना कि उनका इंसाफ करते। Then he told Martha that she was troubled and worried over many trivial things in this world. The right thing to do, which Mary was doing, is listen to Jesus' words and dwell in the house of the Lord. और हम इसी तरह मार्था को भी देखते हैं कि वो बहुत सारी चीजों की फिक्र में है, और वो फिक्रें कौन सी है? दुनिया की चीजों की फिक्र में है। लेकिन मरियम जो है वो यीशु के कदमों में बैठी हुई है और यीशु के कलाम को सुनती है। Let's turn to Psalm chapter 27, verse आए 4. मेरे साथ जबूर 27 देखेंगे और उसकी चौथी आयत। Psalm 27, verse 4. Please read that. जहाँ पे यूं लिखा है, मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है, मैं उसी का ताला 27 verse 4। Yes. ओके। मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफारा किया करूं। आमीन।
So we see that the psalmist says, more than anything else in the world, the most important thing is to dwell in the house of the Lord and listen to what the Lord has to say. और यहाँ इस ज़बूर के अंदर हम क्या चीज देखते हैं? क्या यहाँ ज़बूर में लिखा है कि दुनिया की चीजों की फिक्र में रहो? नहीं, बल्कि ये ज़बूर क्या कहता है कि मेरी ख्वाहिश क्या है कि मैं खुदावंद के घर में रहूं और खुदा का तालब रहूं और खुदा की आवाज को सुनता रहूं। Since the Shekinah glory dwelt in Jesus, he was implementing exactly what, as Lord, the God the Father wanted. And so Mary was listening to that, doing the correct thing. और जो कुछ बाप कहता है कि उसकी सुने और उसको देखें, वही कुछ हमने देखते हैं कि मरियम ने किया। उसने सही चीज का इंतखाब किया और यीशु के कदमों में बैठी रही। Okay, so now let's read chapter 9, verses 57 through 62, and we will do the B section of this chiasm. आए हम उस अजीम दूसरे हिस्से को बी सेक्शन जो है उसे देखेंगे और इसकी आयत 57 से पढ़ेंगे, लूका की इंजील के 9वें बाब में से। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के फट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, आए खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उनसे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, आए खुदावन, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने वालों से तो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। Okay, so we see here, first of all, that these disciples don't understand the cost of discipleship and prioritize discipleship over the things of this world. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शागिर्द है, पहले वो उस बात को समझ नहीं पा रहे कि शागिर्द की जिम्मेदारी क्या है और उसकी कदर कीमत क्या है। Now, let's read chapter 10, verses 25 through 37. आए मेरे साथ 10वें बाब की 25 आयत से 28वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ कुछ यूं लिखा है, और देखो एक आलमी शर उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने से कहा, तुरैत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा। मगर उसने अपने टाइम रासबास ठहरने की गर्ज से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? आमेन। Did you read through 37? Yes, 38. Okay, good. Okay, so what we see here is potential disciples did not realize the cost of following Jesus, and now a lawyer asked Jesus to clarify who is the neighbor of Scripture. हम देखते हैं कि जो यीशु के पीछे शागिर्द चल रहे थे, वो दर हकीकत अपनी कदरों कीमत को पहचान ना सके। और हम फिर देखते हैं एक शरह का आलम भी है। अब वो यीशु से सवाल करता है कि मेरा पड़ोसी कौन है?
In Leviticus chapter 19, verse 18, it says that you should not take vengeance on any people, but you should love your neighbor. अगर हम सृष्टा की किताब के 19वें बाब की 18वीं आयत को पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि तू किसी का इंसाफ ना कर बल्कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख. So, to the potential disciples that we had in the B, he told them that they needed to prioritize Jesus and persevere by hearing and heeding his words. और फिर हम ये भी बात सीखते हैं कि यीशु ने अपने शिगिर्दों से क्या कहा, तुम्हारी पहली अहमियत या पहला काम क्या है कि तुम अपने खुदावन को पहली अहमियत दो. To the lawyer who thought that he followed the law, Jesus said, don't follow the example of the priest or the Levite who showed no compassion to someone in need. अब फिर हम देखते हैं कि जो शरीयत की किताबों को जानने वाले लोग थे या उन्हें भी यीशु ने कहा कि तुम्हें जो लावियों ने हुक्म दिया है वो क्या है, उसकी सुनो. Instead, you need to hear and heed the despised Samaritan's actions, that is, Jesus's actions. अब यहाँ पर जो एक मिसाल दी गई है सामरी इंसान की कि उसने रहम किया है, तो ये भी बताया गया है कि तुम भी वैसा ही किया करो. So Jesus is saying in this parable that he is the Samaritan who is showing compassion on this person needing help where the Jewish leadership was not. अगर आप इस मिसाल को देखें, इस तफसील को देखें, जहाँ पर एक लावी है, जहाँ पर एक काइन है और एक आदमी है जिसे मारा कूटा गया है, लूटा गया है, डाकुओं ने लूटा है, और एक सामरी है. लावी भी आया, उसे देखकर चला गया, काइन आया, उसे देखकर चला गया, लेकिन जो सामरी इंसान है उसने उस पर रहम किया. यहाँ पर दर हकीकत सामरी और यीशु मसीह को कहा गया है कि यीशु मसीह ने लोगों पर रहम किया. What Jesus does here is he shows compassion even to his enemies. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को दूसरों पर तरस आया और ये तरस उन पर भी आया जो उसके दुश्मन थे. Remember when Jesus talked on his speech on the Sermon on the Plain, he talked about taking care of your enemies. याद रखें कि जब यीशु मसीह ने अपना मैदानी वास किया था तो उसने क्या कहा था कि गरीबों की मदद करो. Let's turn back to Luke chapter 6, verses 27 through 36, please. आज हम पीछे जाएंगे लूका की इंजील के 6 बाब के अंदर और उसकी 27 आयत को देखेंगे. जहाँ पे कुछ यूं लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे दावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे कर जाओ, जो तुम्हारी तफकीर करे उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर. जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर. और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो. अगर तुम मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं. और अगर तुम उन्हीं से भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं. और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या आसान है. गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर ले. मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए
कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा, हालांकि बेटे ठहराओगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। आमेन। So Jesus is reminding them that now is the time for mercy, not for judgment. This is the same theme we're running through the entire chiasm. और अभी हम इस पूरे वाक्य को पढ़ते हुए, इस अजीम कुंजी के मुतालिक जानते हुए, इस बात को समझे कि मसीह यीशु ये फरमाता है कि ये इंसाफ का वक्त नहीं बल्कि रहम का वक्त है। Now, back to our parable of the Good Samaritan, notice that the Samaritan takes care of this person, even not just helping him at that time, but giving him bandages and healing his body. और हम उस सामरी शख्स के मुतालिक देखते हैं, उसने क्या किया, उस शख्स का जो अधमुआ पड़ा हुआ था, जिसे डाकू मार कर फेंक गए थे, उसकी मदद की। न सिर्फ मदद की बल्कि उसको तेल और मैं से उसके जख्मों को बांधा भी है। Notice then that he takes him to an inn and tells someone to take care of him, and he pays to take care of him and says, I will return and pay whatever is needed, the entire bill. ना सिर्फ उसके जख्मों को बांधा गया है, बल्कि हम देखते हैं कि इस सामरी शख्स ने उसे एक ऐसे शख्स के हवाला किया है जो उसकी मदद करे और उसके जख्मों को साफ करे, और उसने उसे पैसे भी दिए हैं और ये भी कहा कि अगर इसके इलाज पर कुछ और भी खर्च होगा तो मैं आकर तुम्हें लौटा दूंगा। Now remember, this parable was given by Jesus because the lawyer asked him, how can I inherit eternal life? That is, how can I be rewardable in the coming kingdom? याद रखिए कि ये तफसील जो है उस शख्स को बयान की गई है जिसका ये सवाल था कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस कैसे बनूं। इसीलिए ये तफसील दी गई ताकि इसमें उस सामरी शख्स के जरिए बता सके कि हमेशा की जिंदगी में इनाम पाने के लिए हमें दूसरों पर रहम करने की जरूरत है। So when Jesus tells this parable, he's the Samaritan, and he's telling the innkeeper, I will pay you to show mercy and care for people until I return. The innkeeper are disciples. That's you and I. इस सारी तफसीर के अंदर जो सामरी शख्स है वो दर हकीकत मसीह यीशु है, क्योंकि सामरी शख्स ने क्या दिया, पैसे दिए हैं ताकि उस शख्स का जो डाकुओं में गिरा हुआ था, जो जख्मी हुआ था, उसकी क्या कर सके, मदद कर सके। उसी तरह यीशु ने मेरे और आपके लिए भी एक भारी कीमत को अदा किया है ताकि हम उस बीमारियों और तकलीफों से निकलकर आजाद हो सके। Those of us who take care of even our enemies until Jesus returns, that is, show mercy and compassion as Jesus did, will be rewarded. याद रखें कि अगर मैं और आप भी यीशु की तरह अपने दुश्मनों पर रहम करेंगे, तो तब क्या होगा, जब मेरा यीशु दोबारा आएगा तो वो मुझे और आपको इनाम देगा। Now, why do we need to hear God's word before we can heed it or do it? हमें क्यों खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है? क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी हम उस पर अमल कर सकते हैं। Because in our minds, we want to only take care of friends or those who take care of us. God's word is he wants us to take care of all people and show mercy to all people, just as Jesus did. क्योंकि मेरा और आपका ज़हन क्या कहता है कि सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ मेल मिलाप रखें या उन्हीं पर रहम करें। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ, हत्ता के दुश्मनों के साथ भी रहम करने और मोहब्बत करने की जरूरत है। So the question is not who is my neighbor, that is a noun, a person, but
how can I be a neighbor? That is a verb. How can I love all people? यहाँ पर सवाल है कि आपका पड़ोसी कौन है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका पड़ोसी कौन है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि हम पड़ोसी की हैसियत से दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा है। क्या हम दूसरों के लिए हमेशा खड़े होते और रहम की मिसाल को कायम करते हैं। Paul gives us this command in Galatians chapter 6, verse 10. Let's turn there, please. आए हम गलतियों की किताब उसके 6 बाब की 10वीं आयत में जाएंगे। जहाँ पे कुछ यूं लिखा है, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। आमीन। So here Paul is saying the same thing that Jesus has said and told his disciples. We are to love all people and show mercy until he returns. और हम गलतियों की इस किताब में देखते हैं कि पौलुस रसूल क्या कहता है कि हमें जहां तक मौका मिले नेकी करने की जरूरत है। बिल्कुल ये वही बात है जो मेरे यीशु ने अपने शिगिर्दों से कही कि हमें इंसाफ करने की जरूरत नहीं बल्कि रहम करने की जरूरत है। Now in C and C prime, we're going to see that Jesus blessed his disciples who told what they heard. अभी हम तीसरे हिस्से की आगे बढ़ते हुए सी हिस्से में सीखेंगे कि यीशु ने अपने बरकत दी जो से सुनते हैं। So let's read chapter 10, verses 1 through 9, please. आए मेरे साथ निकालेंगे लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 9 आयत, जहां पे कुछ यूं लिखा है। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रा किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो कर कर अपने आगे भेजा और उनसे कहने लगा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, मैं तुमको गोया बरों को भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। बटवे ले जाना, ना बटवे लेना, ना झोली, ना जूते और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौ आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। आमीन। Okay, notice here that we see Jesus appointed an additional 70 disciples to be forerunners for the kingdom of God message. यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपने 70 शिष्यों को करा दिया है। यानी ये वो नहीं है बल्कि उनके अलावा भी 70 शिष्य हैं और इन दो को टीम बनाकर मुनादी कर सके। In verse 3, they were to rely on God for protection. That is, not themselves, don't take anything else. God will protect them. और यहाँ पर अगर आप तीसरी आयत को देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि मैं तुम बरों को भेड़ियों के बीच, खुदावंद उनकी हिफाजत है। वो अपने आप से अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, खुदावंद उनकी हिफाजत करता है। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें खुद भेज
देखना क्योंकि तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मैं मौजूद हूँ। He also told them not to take any provision that those who accepted the kingdom of God message would provide for them. और फिर ये भी कहा कि तुम्हें अपने साथ कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम क्या है, आसमान की बादशाही की मदद करना, और आसमान का खुदा तुम्हारे लिए सब चीजों को मुहैया करेगा। Their message, he would give them the power to heal, and their message would be the kingdom of God has come to you. और इन्हें दो चीजों का हुक्म दिया गया है। पहला ये कि तुम बीमारों को अच्छा करना, और दूसरा ये कि आसमान की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। For those who rejected his message, he told the disciples to leave and say, the kingdom of message has come near to you, but they aren't going to receive it. और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्हें ये भी कहा गया है कि जो कोई तुम्हें कबूल ना करेगा तो भी कहना कि आसमान की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। Then Jesus clarified in what the 70 should and should not rejoice in. और फिर उन 70 से भी ये भी कहा गया कि तुम्हें किस बात में खुश होना है और किस बात में खुश नहीं होना। Let's read verses 17 through 24 of chapter 10, please. आए मेरे साथ निकालेंगे 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, 24वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जहाँ पे कुछ यूं लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदावन, तेरे नाम से बदरुए भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूँ। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुवत पर गालिब आओ, और तुमको हर किसी चीज से ज़ाहिर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हो, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वरुण कुदरत से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदा, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर सारी। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहिए। और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जा होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती है और जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबी और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो मगर आमीन। Notice that these 70 come back and they are rejoicing because the power Jesus has given them, saying, your word, your power has power over all the demons. जो 70 जिन्हें दो दो करके भेजा गया था, जब ये वापस आए हैं तो कलाम अक़दस कहता है कि ये खुश है, और इनकी खुशी की वजह क्या है? वो कहते हैं कि जो अख्तियार खुदा ने हमें दिया, उस अख्तियार से बदरुए हमारे ताबे हैं। Remember, Jesus had told Martha, don't worry over trivial things. What's important is the word of God. Now he tells these 70 the same thing. It's not important that you can cast out demons or that you have this power. What is important is your name is written in the book of the Lord. That is the Lamb's book of life. याद रखें कि मार्था को खुदा ने क्या कहा था कि दुनिया की चीजों की फिक्र है, बल्कि इस बात की फिक्र कर कि आसमान की बादशाही में दाखिल हो।
अब यहाँ पर शिगिंदों को भी वही बात की जा रही है कि तुमको के तुमने दुनिया में रहते हुए खुदा की कुदरत के वसीला से बदरूहों को निकाला है, पर ये भी बड़ी बात नहीं बल्कि बड़ी बात यह है कि तुम्हारे नाम आसमान की बादशाही में लिखे जाए। That is, our major rejoice should be that we are going to live eternally in the coming kingdom with the King of Kings and Lord of Lords. और हमारी नेचर, हमारा जो तसव्वुर है वो क्या है? खुश होने का है। लेकिन खुश हमें किस बात पर होना चाहिए? खुदा की बादशाही पे, कि वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों की खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। Jesus says this message of eternal life in the coming kingdom of God has been revealed to you, but wise and prudent, that is, the rich of this world, reject that message. अब फिर हम देखते हैं कि आसमान की बादशाही के भेद जो है वो शिगिर्दों पर जाहिर किए गए, वो बच्चों पर जाहिर किए गए। क्यों जाहिर किए गए? क्योंकि दुनिया ने उसे कबूल ना किया। These disciples had entered into the privileged revelation between God the Father and God the Son, and you and I, as believers in this message, have also entered into that. याद रखिए कि मसीह यीशु और शिगिर्दों के दरमियान में एक खास ताल्लुक था जो बाप की जानिब से था। अब वही ताल्लुक आज आपका और मेरा खुदा के साथ है, ताकि हम उस बादशाही के मुतालिक जान सकें। And this privileged revelation that you and I know has been given to us even before prophets like Elijah, Elisha, Moses. We have greater revelation than they did. और हम देखते हैं कि हमें वो भेद दिया गया है जो उन नबियों के पास भी ना था। यानी अगर हम मूसा की बात करें, अगर हम एलिया की बात करें, अगर हम दूसरे नबियों की बात करें, तो वो खुदा को देखने के मुंतजर थे, लेकिन उन्होंने ना देखा। Jesus blessed and commissioned disciples who heard and saw, then shared the kingdom of God message was near or at hand. याद है कि खुदावन उन शिगिर्दों को बरकत देता है जो उसकी मनाती करते, आसमान की बादशाही की खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक फैलाते हैं। But now we are going to see that Jesus is going to pronounce judgment on those cities that reject the kingdom of God message. देखेंगे और सुनेंगे उन Let's read chapter 10, verses 10 through 16, please. आए मेरे साथ 10वीं बाब की 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ कुछ यूं मरकूम है। लेकिन जिस शहर वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें, तो उसके शहरों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पाँव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन सदोम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ऐ खराजीन, तुझ पर अफसोस। ऐ बैते सदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुझ में जाहिर हुए अगर सदू और सदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़कर हगाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। मगर अदालत में सदू और सदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कुफे रहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू तो आल में रवा में उतर जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारी नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को भी नहीं मानता। आमीन। Okay, notice that Jesus told the 70 disciples to shake off the dust when people reject them. That is, pass by, don't judge them. Judgment will come later. यहाँ पर शिगिर्दों को एक खास हुक्म दिया गया,
उन शहरों में मनादी के लिए जाओ, और अगर कोई शहर में कबूल ना करे तो वहां पर तुम्हारा काम क्या है? अपने पैरों की गर्द को झाड़ देना। इस बात का मकसद और मतलब क्या है? इस बात का मतलब और मकसद ये है कि तुमने उस वक्त उनका इंसाफ नहीं करना, बल्कि ये गर्द झाड़ने का मतलब है कि एक दिन खुदावंद तख्त अदालत पर बैठेगा और उनका इंसाफ खुद करेगा। Notice what he tells them for the rejecting cities. The disciples were to leave and say, I'm sad for you. The kingdom of God has come near you, but you will never see it. और हम देखते हैं कि जब उन शहरों में जिन्होंने खुदा के कलाम की मनादी को कबूल ना किया, तो वहां पर शिगिर्दों को ये भी कहा गया कि वहां से निकलते निकलते पैरों की मट्टी झाड़ते झाड़ते ये भी कहना कि आसमान की बादशाही नजदीक है, पर तुम उसमें दाखिल ना होगे। Jesus revealed that the cost for rejecting cities would be worse than that of Sodom, the judgment that Sodom saw. और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये भी बताया गया कि सदूम के इलाके का हाल जो है उस वक्त ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा बनिस्बत उन इलाकों के जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल ना किया। Jesus revealed that the sorrow or future judgment on Chorazin and Bethsaida would be worse than that of Tyre and Sidon, which were Philistine cities. अगर हम इन शहरों को इस साइड पर देखेंगे तो ये कौन से शहर बनते हैं? यानी फलस्तीन को कहा गया है कि उस वक्त खुदा अपनी तख्त अदालत पर बैठेगा, तो फलस्तीन का शायद हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना पर कबूल ना किया। Capernaum, which is where much of his ministry was done in the north, would see destruction. और फिर अगर आप कुफरनहूम को देखें, जहाँ पर तीसरे शहर की बात की गई है कि ऐ कुफरनहूम, ये कुफरनहूम वो इलाका है जहाँ ज्यादातर मसीह यीशु ने मनादी की और बहुत सारे मौजूद दिखाए हैं। Jesus confirmed that the message his disciples were giving was the message that he received from the Father. So, this is rejection of the Father's message of the coming kingdom of God. और यीशु मसीह साफ अल्फाजों में ये बयान करते हैं कि जो शिगिर्दों के मैसेज को कबूल नहीं करता, उनकी मनादी को कबूल नहीं करता, वो दर हकीकत खुदा की मनादी को यानी बाप की मनादी को कबूल नहीं करता, क्योंकि जो शिगिर्दों के पास मनादी है वो कहाँ से आई है? मसीह यीशु ने दिया। मसीह यीशु को किसने भेजा है? खुदा बाप ने। And this generation's rejection, which would include the Judaizers that Theophilus was fighting, would cause judgment of AD 70 when Jerusalem was destroyed. और हम देखते हैं कि ये सारे वाकयात के मुतालिक अगर सन 70 की बात करते हैं तो यरूशलेम उस वक्त तैस हो गया, नबूद हो गया और खत्म किया गया, क्योंकि उस वक्त में उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल ना किया। So, our point is Jesus is saying that blessing will come on those disciples who hear and heed, and destruction will come on those who reject. सारी गुफ्तगू का मतलब क्या है कि खुदा उन्हें बरकत देता है जो उसके कलाम को सुनते हैं और उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, और खुदा उन्हें तबाह कर देता है जो उसके कलाम की मनाती की बातों को अपने दिल में नहीं रखते और उसका इनकार करते हैं। Let us pray. Father God, we are thankful that we have been able to receive the same message that the disciples received from Jesus, to hear and heed his words. खुदा निहायत शुक्रगुजार है आज इस कलाम के लिए जो तेरे शागिर्दों ने तुझसे सुना, और आज हम उसको खुदा सुन पाए हैं।
The Samaritan, Jesus, came down to show mercy on all people, and then we, the innkeepers, the disciples, are to continue to show that mercy until he returns. खुदा का खुदा देख वो ही सामरी यानी यीशु मसीह इस दुनिया पर आया ताकि रहम करे बख्श के हम भी तेरे अच्छे शागिर्द बनकर वही कुछ कर जो तूने किया हम भी तुझ पर रहम कर सकें. Those who do show so will have many blessings when he returns. खुदा का खुदा ताकि जब तू वापस आए तो खुदा तू हमें बरकतों से मामूल करे. May we be those who receive blessings for showing mercy on this earth. In Jesus' name we pray. Amen. खुदा का खुदा फजल बख्श के हम उसी रहम को जो तूने हम पे किया है हम भी उसी रहम को दुनिया पर कर सके यीशु के नाम में. आमीन. Thank you. God bless you. See you next time. God bless you. Have a great day. You also, Mary.